and good evening once again. As you know, the topic is my parents, and that particular topic is completely related to a performance in which आपको छोटे छोटे performances use करके एक paragraph बनाना है और उस paragraph का आपको use करना है in your speaking में. इसमें आप जैसे अपने बारे में बात कर रहे थे अभी तक, like about you, about your uh, uh, hobbies, about your background, about your education. इसी तरह से आप अपने पेरेंट्स के बारे में भी कुछ certain points you can say, आप बोल सकते हैं, ठीक है? So first of all, who is going to speak? Who will be the first performer? Tell me. Who will be the first performer? Okay. You want to perform first, Hanvi? Yes, ma'am. That's wonderful. Shall we start? Yes. Okay. My father's name is Mayur. They are. Hanvi, just a second. Yes. Let me just open my file so that I can write your corrections, okay? Okay, ma'am. Yeah, you can perform now. My father's name is Mayur. He is 37 years old. They were born in 1984. They are businessmen. He is businessman. He is. Father is a singular subject. In Hindi, आप जरूर कहते होगे my father और वो, but in English you should say he. Okay? He is a businessman. My mother name is Jayashree. My mother is 37. Mother's name. My mother name is Jayashree. नहीं बेटा, mother's name. उसमें apostrophe s लगेगा. Mother's name. Okay. Yes. My mother's name is Jayashree. She is 37 years old. She was born in 1982. She is a housewife. Okay. Thank you. Okay. Now, can you tell the quality of your parents? क्योंकि आपको वही तो ऐड करना था, वो भी साथ में ऐड करना है. My mother is a confident. My father is polite. Very good. Over the performance? Ma'am, what? Completed the performance? Yes. Very good. Yes. Very nice. Okay. So, next performer, Acha Hanvi, when you are performing, suppose when you are standing on the on a stage, that means you should watch your audience, but here no audience is there. So you should watch the camera, or if you can see me, you have to see me, you have to look at me, and then you should perform. Okay. Okay, so, ma'am. Fine. Can you perform once again, including qualities also? Yes, ma'am. Okay, let's start. My father's name is Mayur. Father's name. My father's name is Mayur. He is 37 years old. He was born in 1984. His hobbies are. He is a businessman. He is a polite. He is. My mother's name is Jayashree. My mother's name is Jayashree. She is a housewife. She was born in 1982. She is a confident. She is confident. Do not say she is a confident. Okay, very nice. Confident. This time it is really perfect. Very good. Okay, next performer, guys. Who will be the next performer? I'm Manish Singh.
Yeah, May I? yeah, you can. Yes, ma'am. My father's name is Ram Gopal Singh and mother's name is Pushpa Devi. My father is an army man. He is a very kind and faithful and hardworking person. He loves me very much and takes caring of all my needs. My mother is a housewife. She takes great care of the house and cooks tasty food for all of us. She is selfless woman. I have learned the value of money and education from my parents. And then nothing is nothing is in life is free. You have to work hard to get what you want in life. Can't skip the hard working part. That's I learned from my previous lives in 22 years. Thank you. It's over. That's nice. Do you know you have given all performance keeping your camera off? Do you know this? Yes ma'am. Okay, you मैं kept वापस it. से दे दूंगा वापस से अच्छा, मतलब ओपन करके कैमरा ऑन आपने वो बाय मिस्टेक था कि आपने वो नहीं रखना था ऑन, ऐसा कुछ है? नहीं मैं आपको बोलते तो वापस ऑन करके दे दूंगा उसमें क्या। नहीं देखो, अगर आपको लगता है that I don't want to like sometime it happens that when you are not willing to come, नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है ना ऐसा कुछ नहीं ऐसे कुछ नहीं है। Yes, ma'am. अगर बोलो तो मैं वापस से कैमरा ऑन करके दे सकता हूँ हाँ, वो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, और परफॉर्मेंस भी Yes, ma'am. कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए ना, अब दिखेगा नहीं तो पता नहीं चलता है। मैम ये लैपटॉप इसलिए इसका कैमरा थोड़ा लो है नहीं, मतलब लेकिन आप अच्छे दिख रहे, यू लुक हैंडसम, डोंट वरी, तो डोंट कैम- वरी। ओके, हेलो मैम मेरी आवाज आ रही या यू आर Yes, ऑडिबल। yes, ma'am. My father's name is Ram Gopal Singh and mother's name is Pushpa Devi. My father is an army man. He is a very kind and faithful, hardworking person. He loves me very much and takes care of my all needs. My mother is a housewife. She takes great care of the house and cooks tasty food for all of us. She is selfless woman. I have learned the value of money and education from my parent. Nothing in life is free. You have to work hard to get what you want in life. Can't skip the work hard part. And this lesson I learned from my previous 22 years. वेरी नाइस, That's all. Thank वेरी you. गुड, वेरी नाइसली अरेंज्ड ऑल द सेंटेंसेस, नाइसली डिस्क्राइब्ड, वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि आपको यू डोंट हैव टू सी योर रिटर्न मटेरियल एंड देन यू आर स्पीकिंग। कोशिश करें, यू हैव दैट पोटेंशियल मनीषा, आई एम टेलिंग यू। सो एंड इसमें मैंने ये हैंडी, लिखा था इट्स ओके, समटाइम इट हैपेंस दैट हमको लगता है यार हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप, है ना, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है। कभी कभी हम नहीं पहचानते कुछ चीजों को, हमें लगता है नहीं हो पाएगा, बट करें तो हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, हु विल बी द नेक्स्ट परफॉर्मर? हु विल बी द नेक्स्ट परफॉर्मर? साक्षी, रेडी? साक्षी रेडी है? कैमरा ऑन कर दूं फिर? Yeah, you have to. If you like, you can. No problem. हेलो मैम, Hi. गुड इवनिंग मैम। Good evening. How are you? फाइन। That's nice. Shall Shall we begin? ओके मैम। Okay, start. I am Sakshi Jain. My father's name is Sunil Jain. My mother's name is Sarita Jain. My father is a businessman. My mother is a government teacher.
My mother from Jhansi, my father from Banda, UP. I have learned the quality of self-respect, helping to others, the truthfulness from my parents. My mother is a confident, humble, and beautiful lady. My father is honest, active, and careful. My parents are selfless person. Selfless persons. हाँ, persons. अभी दो है ना, so we should say persons. हाँ, कैसा लगा मैम? सही बोला मैंने? हाँ, it is good. See, when we are speaking ना, when we are speaking for practicing, even then हमको कोशिश करनी है कि हम उसे you must be knowing, जब हम कॉमा या पॉज देते हैं, कई कॉमा या फुल स्टॉप होता है, जिसका मतलब होता है कि हमें थोड़ा रुकना है, एंड देन वी स्टार्ट. ये चीज हम स्पीकिंग के लिए फॉलो करते हैं, क्योंकि लिखने में तो हम कभी कहते नहीं है ना, कोई भी सिंबल को कहा नहीं जाता है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क कहा नहीं जाता है. सो माय सजेशन इज कि जैसे आपने अभी बोला, तो एक काम करते हैं, आप इसे फिर से बोलेंगे, और इस बार आपको पता है कैसे बोलना है. दिस टाइम यू विल स्पीक जैसे कि आप थोड़ा सा जहाँ कॉमा है वहां रुकेंगे, जहाँ पे आपको लगता है, जैसे आपने बोला माय फादर्स नेम इज दिस, माय मदर्स नेम इज दिस, सो गो लिटिल स्लो. इंग्लिश को ये फ्लुएंसी ब्रेकर्स होते हैं, लेकिन बहुत फास्ट बोलना इज नॉट ओनली फ्लुएंसी. आप उसे आराम से पॉज पंक्चुएशन मार्क्स के साथ में बोलते हैं, दैट आल्सो कम्स इन फ्लुएंसी. ठीक है? ओके मैम. सो मैं जल्दी हाँ, और वो कॉमा फुल स्टॉप वो पता नहीं चला, तो इस बार यू आर स्पीकिंग लिटिल स्लो. फिर से स्टार्ट करें. हाँ मैम. ओके मैम. आई एम साक्षी जैन. क्योंकि जस्ट एक्सक्यूज मी, क्योंकि ये परफॉर्मेंस छोटा है तो हम लोग इसे दोबारा करवा सकते हैं. कभी बड़े परफॉर्मेंसेस होते हैं तो नहीं करवा पाते, लेकिन अब ये कर सकते हैं ना. नहीं, राइट मैम, राइट मैम. बोलूं मैम? स्टार्ट करूं? या I am Sakshi Jain. My father's name is Sunil Jain. My mother's name is Sarita Jain. My father's is a businessman. My mother's is a government teacher. My mother from Jhansi. My father's from Banda, UP. I have learned the quality of self-respect, helping others, the truthfulness from my parents. My mother is a confident, humble, and beautiful lady. My father is honest, active, and careful. My parents are selfless persons. हाँ, वेरी गुड. ये ऐसा कुछ वो जो पिच है, एंड जो हम लोग कहते हैं ना, हम लोग उसको बोलते हैं दैट योर टेम्पर ऑफ स्पीकिंग शुड बी कंट्रोल्ड. तो आज लग रहा है, अभी लगा कि यस वो कंट्रोल्ड था. वेरी नाइस. मैम उस टाइम बताया जल्दी बोल गए थे, इसलिए. नो प्रॉब्लम. लेकिन वो करते करते ही आ जाता है ना. नेक्स्ट टाइम से जब आप कोई परफॉर्मेंस दोगे तो आप ये याद रखोगे कि मुझे फिर से देना है, फिर से नहीं देना है, एक बार में अच्छा देना है ना. हाँ. ओके मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. ओके, नेक्स्ट वन इज, हु विल बी नेक्स्ट? Who will be next? हेलो मैम, एक क्वेश्चन था. हाँ जी. मैम ये पूछ रहा था मैम कि हमें जो रीडिंग करना है या फिर कहीं कुछ बोलना है किसी के सामने, तो मैम वो जो ब्रेक कहाँ पे देना, मतलब थोड़ा सा वेट करके एंड देन नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ना या वर्ड पढ़ना है मैम, तो थोड़ा सा ब्रेक कहाँ पे देना है इसमें? आप सिर्फ दो चीजों को ध्यान रखें जब आप पढ़ते हैं कोई भी चीज. तो एक चीज होती है फुल स्टॉप, जो हमें हर एक कंप्लीट सेंटेंस के बाद नजर आती है. दूसरी चीज होती है कॉमा. दोनों के समय अंतराल में डिफरेंस होता है. जब आप कॉमा दे रहे हो, इसका मतलब है आप कोई दूसरी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो सेम सेंटेंस में. जैसे आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, क्रिकेट, sometimes what we call it, ludo or carom also. ठीक है? तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स देती जा रही हूँ, लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, कैरम एंड लूडो. तो ये जो मेरी बीच जो मेरे को स्पेशली जो पॉज आ रहे हैं,
जिसमें अलग ही साउंड आ रहा है कि मैं एक के बाद एक ऐड करती जा रही हूँ, ये कॉमा का पॉज होता है। लेकिन जब आप कहते हो माय फादर्स नेम इज मिस्टर शिशुपाल सिंह तोमर, he is a private employee, my father is very calm person and he always remains happy, he is very wise and hardworking। तो जब आप क्या लगा रहे हो, फुल स्टॉप लगा रहे हो, तो आपको फुल स्टॉप के बाद समझ में आ रहा है कि मैं एक ही सेंटेंस में दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं ऐड कर रही हूँ, एक कंप्लीट हो गया, थोड़ा रुके, और तो फुल स्टॉप में कंटिन्यूएशन नहीं होता है, रुक के फिर चालू करते हैं, लेकिन कॉमा में रुकते जरूर है लेकिन हमें वो कंटिन्यूएशन रखना पड़ता है। तो कॉमा का अंतराल कम होता है फुल स्टॉप का उससे ज्यादा, लेकिन वो सेकंड्स और मिनट्स में नहीं कंपेयर करते हैं, उसे नहीं मेजर करते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टाइम पॉजेज होते हैं। ठीक है, ये दो चीजें बहुत ध्यान रखी जाती हैं। और जब आप बाकी पंक्चुएशन लिखने में बहुत मायने रखते हैं, बोलने में ये दो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, आप एक अच्छे फ्लॉलेस फ्लुएंट स्पीकर हो सकते हैं, है ना? ओके, चलिए, और नेक्स्ट कौन है जो अपनी तरफ से आके परफॉर्म करना चाह रहा है, जो रेडी है परफॉर्मेंस के लिए? देखिए, काम चलाओ परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि मैंने तैयार नहीं किया है और मैं अभी परफॉर्म कर सकता हूँ, ये परफॉर्मेंस भी चलती है। लेकिन आपको लग रहा है आप तैयार ही नहीं हो और मन भी नहीं कर रहा है, वो परफॉर्मेंस तो परफॉर्मेंस होती नहीं है मेरे हिसाब से, तो वो आप तैयार करके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका मन कर रहा है परफॉर्म करने का, बिल्कुल कीजिए, नो इश्यू, वो मन होना चाहिए परफॉर्मेंस का। लेकिन अगर आपने तैयार किया है और अंदर से हेजिटेशन आ रही है, और वो कोई प्रॉब्लम नहीं, हेजिटेशन खत्म हो जाएगी, आप परफॉर्मेंस कीजिए, ठीक है? मैम हाँ मैम जी, विनी हाँ, I can see your name, you can perform, no problem. Ready now? ओके मैम, माय नेम इज विनीता कुशवाहा। आप कैमरा में नहीं आओगे? नहीं मैम, ऐसा क्यों? आप तो अच्छे दिखते हो, मैंने देखा है आपको कैमरे में, आप अच्छे दिख रहे हो, डोंट वरी। नहीं मैम, इधर बहुत सारे हैं ना, थोड़ा मेहमान वगैरह आए इसलिए थोड़ा कोई इधर बात उधर नहीं, होते रहते। नो प्रॉब्लम, चलिए शुरू करें। ओके मैम, माय फादर्स नेम इज हुकमचंद कुशवाहा। माय फादर्स लिव इन नरसिंहपुर। बेटा उसको ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, माय फादर लिव इन, उसमें वो अपॉस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं है। ओके मैम, my father's name is Hukamchand Kushwaha. My father's live Narsinghpur. My father's service is policeman. My mother's name is Kanta Devi Kushwaha. My mother's live my Jabalpur. mother lives, my mother lives, उसमें एस My नहीं लगेगा। mother's live Jabalpur. She is housewife. She is housewife. I love my parents very much. They are most important to me. I have learned to tell the truth my parents happening other. Okay, बस मैम। very nice, completed, ओके मैम, इतना ही। very nice, nicely prepared. विनीता, कोशिश करें थोड़ा सा अभी, डू यू लिसन टू इंग्लिश, इंग्लिश सुनते हो आप? यस मैम। अच्छा, कैसे, अच्छा क्या करते हो, किस तरह की इंग्लिश सुनते हैं, थोड़ा सा मुझे कुछ बताएंगे? मैम जो इंग्लिश में जो वीडियो वगैरह होते हैं इंग्लिश में, हाँ। वो सुनते हैं, स्टोरी वगैरह होती है वो सुनते हैं, मूवी वगैरह रहती है जो वो देखती हूँ, इस तरह का। गुड गुड, मतलब आप सुनने का, दैट लिसनिंग भी कर रहे हो, आपको बताना मैम थोड़ी। हाँ ओके मैम, थोड़ा मतलब कोशिश कर रही हूँ करने के लिए। कीजिए कीजिए, उसको कंटिन्यू कीजिएगा, उसको बीच में यू डोंट हैव टू लीव इट,
बीच में रोकना नहीं है, आप करते जाइए जितने बस महीने मैम भी वो आप लिखने में, मैम लिखने में है ना स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक का तो मैंने आपको स्पेलिंग रूल्स पढ़ा दिए थे, है ना। स्पेलिंग रूल्स को किस तरह समझा जाएगा, डिवीजन करके उन्हें लर्न करके हम लोग अब उन पे कमांड कर सकते हैं। डिवीजन करके अगर आप उन्हें बोलना सीख सकते हैं तो उन्हें लर्न भी कर सकते हो, फिर हमेशा याद रखते हैं उनके डिवीजन के हिसाब से। करेक्ट। तो आप ये ओके तरीका मैम। फॉलो कीजिए इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में स्पेलिंग खुद से हम बना नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी बनी हुई है। तो उनको लर्न करने ओके का मैम। सबसे अच्छा तरीका है उनको क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, एंड डिवाइड करने के बाद में उनका प्रोनाउंसिएशन, उनकी स्पेलिंग लर्न कर लीजिए आप, और मीनिंग लर्न कर लीजिए, आपको हमेशा याद रहेंगी। ठीक है। ओके मैम। और एक चीज ओके। और कोशिश करनी है आपको, आप ये जो इंग्लिश सुनने का काम है, इंग्लिश रोज सुनिए, ताकि आपका, जी आपको पता है ना, आपका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है जब हम बुंदेलखंडी होते हैं या हम जी पर्टिकुलर जी एरिया से होते हैं, है ना, तो हमारी जी जी लैंग्वेज में चाहे वो हिंदी हो या हम इंग्लिश बोलें, उस लैंग्वेज में हमारे उस लैंग्वेज जो हमारी सब लैंग्वेज है, जो बोली है हमारी, डायलेक्ट है, जी उसका फर्क पड़ जाता है। तो मेरा जी सजेशन है मैम। कि आप अब जब भी इंग्लिश सुने तो थोड़े थोड़े शब्दों को सुनिए। जैसे शी पर ध्यान दीजिए, आप जब शी बोलते हैं तो सी आता है। ये जिन जिन लोगों के साथ में ये चीज होती है, वो सब लोग इन चीजों पर ध्यान देंगे कि हमको सी, हम कोशिश करें हमको सी नहीं कहना है, हमको क्या कहना है, शी। तो ये चीजें हमको धीरे धीरे हमारे एक लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन में, हमको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ेगा प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए, हम यहाँ पर बैठकर ही सही प्रोनाउंसिएशन सीख लेंगे। ठीक है। जी मैम। ऐसे ही फादर हिंदी में फ हल्का होता है, इंग्लिश में वो होता है एफ, फादर। फादर, हाँ, ऐसे फ बोलते वक्त ये दो दांत अलग ही बाहर दिखते हैं, फादर, है ना। और जब आप बोलते हो फा हल्का, तो फ में दोनों होठ चिपक जाते हैं, लेकिन वो फ फ नहीं निकलता है, वो निकलता है फ। ठीक है। तो आप घर पे प्रैक्टिस जी करना और हमें बताना कि वो प्रैक्टिस का क्या अभी बेनिफिट हुआ है। ठीक है। देखो ओके टाइम मैम। लगेगा ओके पर मैम, आ थैंक यू। जाएगा, टाइम लगेगा, कम से कम एक हफ्ता डेली करना है ये चीज, है ना। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू, इट इज अ गुड परफॉर्मेंस, आपने बहुत अच्छे सेंटेंसेस बनाए हैं। थैंक यू एंड थैंक यू। थैंक यू थैंक मैम। यू। ओके, चलिए गाइस, 10 मिनट के बाद ये वाली मीटिंग फिनिश होगी, तो आप लोग को फिर से ज्वाइन करना है, अभी बता रही हूँ, कंफ्यूजन में नहीं होना है, सभी को ज्वाइन करना है एक साथ। ठीक है। और लिंक, वही लिंक पे क्लिक कीजिएगा। ओके, चलिए, who will be the next performer? रोहित, would you like to speak? बोलना चाहेंगे आप? Performance, would you like to give performance? 10 मिनट्स में हम कम से कम 4 लोग परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज आप अगर अपना टाइम लेते हैं तो। ओके, एनीवन एल्स? चांदनी, चर्चित, रोहित? I can see 2 Rohits. How 2 Rohits? दो कैसे हैं? Okay, so finally one Rohit is there. Okay, चलिए बताइए। Anyone else? Okay, तो अब अगर जो तैयार नहीं है अपने पेरेंट्स के बारे में, अभी फिलहाल उन्होंने रेडी नहीं किया है, डोंट वरी, यू गेट देम, गेट द पैराग्राफ रेडी, एंड आप उसे कल भी परफॉर्म कर सकते हैं। कल फ्राइडे है, कल क्लास रहेगी, कल भी परफॉर्म कर सकते हैं आप। मैं आपको आज, इफ यू रिमेम्बर, मैंने आज आपको एडजेक्टिव के साथ में पूरी पार्ट ऑफ स्पीच, पूरी जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसकी मैंने आपको फाइल भेजी हुई है ना।
पूरी जो पार्ट ऑफ स्पीच है मैंने आपको उसकी फाइल भेजी हुई है, और मैं चाहूंगी आप उसे एक बार रीड करें। उसमें पार्ट ऑफ स्पीच जितने भी होते हैं, अब पार्ट ऑफ स्पीच हम जनरली नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आप चाहें तो उसे समझ सकते हैं दूसरी शब्दों में, जैसे कि नाउन हो गया, जैसे कि प्रोनाउंस हो गए, जैसे कि एडजेक्टिव्स हो गए। ये जो सारी चीजें होती हैं वो हमारी इनके अंदर आती हैं। मतलब हम 8 पार्ट ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। तो आज मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच का जनरल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। जनरल इंट्रोडक्शन में आपको पार्ट ऑफ स्पीच का दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा, वंस अगेन कुड यू प्लीज गिव मी योर इंट्रोडक्शन। आप मुझे अपना नाम बताएंगे? ममता मई स्वामी, आई डोंट नो, पर आप मुझे स्टूडेंट नहीं लग रहे हैं क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है। Can you please tell me your name? Can you please tell me your name? If you tell me your name, that will be okay. नहीं तो मुझे रिमूव करना होगा। जो स्टूडेंट्स, प्लीज गाइज अपने जो नेम है उसी के साथ आप लोग ज्वाइन करें। अगर मुझे कोई दूसरा नेम दिखता है, आई वुड डेफिनेटली रिमूव। ओके, सो सबसे पहले तो आप लोग उसको पढ़िएगा जो शीट मैंने आपके साथ शेयर की है, और उसको मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है, और उसको मैं अभी ओपन कर रही हूँ। आप लोग बस उसे पढ़िएगा, मैं उसे अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। और अगर कोई डाउट्स रहते हैं आप लोगों के अंदर, आपको लगता है दैट देयर आर सम डाउट्स, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड। आज लेकिन केवल 4 स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया है। आई वाज एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू परफॉर्म, लेकिन अभी सिर्फ 4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस की है। सो आप लोग को ध्यान रखना है, परफॉर्मेंस में हिस्सा लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइज, आई होप आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले तो जस्ट कीप योर माइक्स ऑफ फॉर अ व्हाइल, जब तक कि हम लोग ये समझ लेते हैं कि इंग्लिश के अंदर है ना 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। स्पीच का मतलब होता है सेंटेंसेस जो लिखे जा रहे हैं या जो बोले जा रहे हैं। सो दैट इज द पार्ट ऑफ स्पीच। और उस स्पीच में जितने भी सेंटेंस हैं वो किसी न किसी फैमिली से जुड़े हुए होते हैं। वो कोई ना कोई फैमिली के मेंबर्स होते हैं। जैसे कि कोई शब्द जो है वो बिना सरनेम के नहीं होगा। जैसे हमें पता है हम वर्ल्ड में आए हैं और हमारे पास में नेम्स हैं, तो कोई बिना सरनेम्स के नहीं होगा। एंड अगर हम देखें तो नाउन, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो नाउन हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि प्रोनाउंस हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम जिन्हें एडजेक्टिव्स कहते हैं। एडजेक्टिव्स हम कल पढ़ चुके थे। नाउन के बारे में हमने जानकारी कल थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लिया था।
फिर हम आते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब हम जानते हैं कि किसे कहा जाता है। वर्ब कहा जाता है उन पर्टिकुलर एक्शन शब्दों को जो एक्शन बता रहे हैं, उनको हम वर्ब कहते हैं, या जो स्टेट बता रहे हैं नॉन एक्शन, उन्हें भी वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एडवर्ब को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है वो शब्द जो कि वर्ब की विशेषता बताते हैं, एडवर्ब्स कहलाते हैं। प्रीपोजिशंस, कुछ ऐसे छोटे छोटे शब्द जो कि हमारे लिए हमको लिंक, कुछ एक सेंटेंस, एक शब्द को दूसरे शब्द से लिंक करने का काम करें, तो वो प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। कंजंक्शंस, जैसा नाम वैसा काम, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। और इंटरजेक्शन का मतलब होता है भाव को व्यक्त करने वाले शब्द। भाव को व्यक्त करने वाले शब्द जो हैं इंटरजेक्शन कहलाते हैं। भाव, है ना, भाव को हम सिर्फ अपने बॉडी लैंग्वेज से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें भाव को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, शब्दों के द्वारा। वो सबके सब हमारे कहलाते हैं इंटरजेक्शन। अब मैं अगर आपको नाउन के बारे में बात करूं तो नाउन का फंक्शन, काम, जॉब उसकी जो होती है दुनिया में, वो ये है कि नाउन एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा एनिमल है। किसी का भी नाम जो है नाउन हो सकता है, ये चीज हमने कल समझी थी। और वो जो है हमेशा किसी भी सेंटेंस का कर्ता बनने का काम करता है या फिर ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है जो लास्ट में होता है। ठीक है, ये नाउन होता है। गाइज मैं इस क्लास को अपग्रेड कर रही हूँ, आप लोग फिर से ज्वाइन कीजिए, क्लास खत्म होने वाली है, दैट्स व्हाई। और